Hello everyone, welcome to Sarkari. Today we are taking up the newspaper of 21st of October. Starting with the first one, discover new experience and a sense of belonging in Uttarakhand. Uttarakhand is a very pristine location which is known for its landscape and as seen here, it has immense potential with regarding to the tourism capacity. Several other schemes have been provided. For example, protecting the indigenous cuisine, local culture, historical heritage, hill lifestyle. For that, construction of roads in a sustainable manner is required. Homestay, it is including local community for development of the homestay will create a positive impact. Role of local artisan farmer with the service provider will help to make tourism more sustainable. It will also help in curbing migration from the state because the construction of the homestay will not require huge real estate developer. They will require only local players and also the local artisan. The tourism is not just a seeking, tourists are not just seeking comfortable accommodation, they're also seeking connection with new destination and people. With people, it is related to the art, traditional hill lifestyle, which can be promoted. On another example is with regarding to the sports lover around the world. River rafting, paragliding, bungee jumping, skiing offer, trekking and hiking. All these can play a very important role in inclusion of some sports into the Olympics, as well as it will also uh, generate a lot of wealth. But focus should be made to reduce the impact of adverse impact on the environment. Also, of late, we are seeing that one of new forms of tourism that is being promoted is watching the dark sky like during the night. Mhm. Like we have the dark sky reserves in Ladakh in Hanle. So even Uttarakhand is promoting that. Mm. So it would be helpful in terms of attracting more youth. Further, wed in India. That is why you are going to Switzerland or other countries. Uttarakhand, like for example Mussoorie, Nainital, Ramnagar, are among the luxurious venue where all modern amenities regarding to destination with. तो उसके के लिए प्रमोट किया गया. With regard to climate finance, under the Kyoto Protocol, the focus was much on the carbon emission credit. But over the years, accumulation of carbon emission credit was not uh, used successfully by the countries. That is why it was renegotiated under the Paris Climate Change. तो उसमें वापस से इट इज गिवन दैट कॉप 29 में जो अजरबैजान में होने वाला है इट expected to be finance COP as a climate finance issue is a feature on top of its agenda. क्योंकि जो कार्बन एमिशन क्रेडिट है इसको कैसे यूज किया जाए, उसका प्रोटोकॉल क्या होगा, रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या होगा, ग्रीन वॉशिंग इसके अंदर में है तो अगर होगा तो इसको कैसे कर्ब कर सकते हैं. प्लस जो डेवलप कंट्री है दे आर डिमांडिंग दैट अंडर द क्लाइमेट फाइनेंस एग्जाम्पल सच एज environmental aspect, human rights must be included, whereas developing countries call for inclusion of local communities with regard to the climate finance. और 2009 में एक बात हुआ था कि डेवलप कंट्रीज हैड कमिटेड $100 billion a year to finance the developing countries for the just transition. लेकिन ऐसा हो नहीं पाया. Still there is a huge shortage with regard to the climate finance. प्लस इसमें बोलते हैं जो ग्रांट है सिर्फ उसके कारण ही the country will be able to
ट्रांजिशन कि इसमें बॉन्ड भी इंक्लूड होना चाहिए, प्रॉफिट भी होना चाहिए, और अदर फाइनेंस को भी यूज कर सकते हैं। किसको चाहिए? In this, हम्म, hmm, एक सिक्स in सेवेंटी this फाइव week, uh, okay, आप इसमें कंप्लीट कर दो हाँ, पहले. who needs climate finance? First of all, 675 million people, they are in a developing country, they don't have access to the power. True, because power is being derived from coal as well as existing natural gases. It needs certain kind of investment in green technology. For that, climate finance is required. Second, vulnerable countries such as VOC 20 that is facing huge adverse impact of the climate change. They need finance. Underdeveloped country, they need finance. Mm. Further, इंडिया कितना चाहिए? तो इंडिया का पंच हमारे टारगेट है 500 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है फ्रॉम द नॉन फॉसल फ्यूल। 5 मिलियन टन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने का बात हो रहा है। फिर लॉन्ग टर्म में 2070 तक क्लाइमेट न्यूट्रल बनेंगे। 2.5 गीगा टन ऑफ कार्बन इसको आप कैप्चर करेंगे। तो इसके लिए देर इज नीड फॉर द क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, वी नीड फाइनेंस। तो 850 लाख करोड़, मतलब इतना इन्वेस्टमेंट चाहिए। 8.5 करोड़ करोड़, 850, इसका मतलब $10 ट्रिलियन हुआ अप्रोक्सीमेटली। $10 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट चाहिए अगले 50 साल में, तभी हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो इसमें डिटरमाइनिंग द न्यू क्लाइमेट फाइनेंस, इसको बोला जाता है न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, NCQC। इसमें एक्चुअल डिसबर्सेस का बात हो रहा है, सिर्फ कमिटमेंट नहीं, कितना आप प्रॉमिस किए और कितना आप दिए। फिर पब्लिक कैपिटल फॉर्म हो रहा है इन फॉर्म ऑफ डायरेक्ट ग्रांट, प्राइवेट कैपिटल विल आल्सो बी इंक्लूडेड एंड आल्सो पब्लिक कैपिटल, प्लस जो organically flowing private finance to developing countries should not be counted. It will only include public finance mostly to the developing countries. तो वी कैन से जो एक क्लाइमेट, जो ग्रीन क्लाइमेट फंड बनना था 2009-2010 के अंदर में, GEF हुआ था, प्लस जो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर में जस्ट ट्रांजिशन का बात हुआ, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का बात हुआ, वो सब ज्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पाया। इसलिए वापस से देयर इज अ रीनेगोशिएशन on the finance perspective of the climate change under the COP 20। So I would add, जैसे in existing finance की हम बात कर रहे हैं, existing तीन funds हैं. One is the loss and damage fund जो बना COP 27 इजिप्ट में हुआ 2022 में, and then we talk about $100 billion of aid per year by the developed countries. So even that is not being seen to be functional. And thirdly, Azerbaijan is now talking about will be hosting COP 29, that $1 billion worth of fund would be made where it would focus upon contributions from the fossil fuel producing nations, and it is going to stay voluntary. But question arises कि creating more funds is the solution or not, या फिर focusing upon how we can ensure that the existing mechanisms they become effective. Now when you talk about challenges, so like I'm focusing more upon keywords. So data asymmetry is there, which is a challenge for private sector because they lack access to the data in order to know about where it is better to invest, because private sector is focusing upon the returns also out of that investment or the finance that they would be providing. So there is no defined income stream also out of the adaptation projects, or initially also there is high upfront cost which is involved. And thirdly, we can say ki there are many countries which are not having a proper adaptation plan also. Like even in case of India also, as of now we are not having any adaptation plan, that is still a work in progress.
And solution, we can then talk about co-financing. So in co-financing, government and multilateral banks, they can integrate and they can agree on providing again green finance or adaptation finance. And then apart from this, we can focus on innovative measures, like there is the debt for cap the climate swap agreement. So we are integrating the role of capital market here, or introducing climate derivatives. And apart from this, we talk about investments in green bonds. So this is one of the mechanisms through which people can invest. They can get returns also, and we'll have the finance availability also. So green bonds, carbon tax mechanism, it can be another way. Hmm. Co-financing. Important aspect. What does the new Lady Justice statue signify? तो इसमें अ, पहला हाईलाइट किया कि जो ब्लाइंडफोल्ड कॉन्सेप्ट था रेनेसा पीरियड के समय में था, इट वाज अ सटायर एंड द करप्ट स्टेट ऑफ लीगल सिस्टम विद जुडिशियल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग अ ब्लाइंड टर्निंग अ ब्लाइंड आई। लेकिन एनलाइटमेंट पीरियड के अंदर में इट वाज री इंटरप्रेटेड एज इम्पार्शियल, दैट इज जस्टिस शुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड विदाउट बायस रिगार्डिंग ऑफ वेल्थ पावर एंड सोशल स्टेटस। और sword symbolizes the power and authority of the law. तो लॉ कैन ऑल्सो प्रोटेक्ट एज वेल एज पनिश। तो दोनों हाथ में दिखाया गया था। तो इसमें बोल सकते हैं कि इंडिया ने इसको जो जुडिशरी ने इनको डी कॉलोनाइज किया। डी कॉलोनाइज में लेडी जस्टिस को इंडियन पर्सपेक्टिव से इसको दिखाया गया, दैट इज लॉ इज नॉट ब्लाइंड, इट सीज एवरीवन इक्वली। तो द ब्लाइंड फोल्ड को हटा दिया गया, एट द सेम टाइम स्वॉर्ड को रिमूव कर दिया गया एंड हाथ में बुक कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। तो क्यों चाहिए था? बिकॉज बोल सकते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, अर्जेंट। लेकिन चेंज होने से क्या फायदा होगा? तो एग्जैक्टली वी कैन नॉट से दैट, बिकॉज इट नीड सर्टेन काइंड ऑफ इंटरवेंशन इन अ बेसिक स्ट्रक्चर रिफॉर्म, तभी जाकर के सोसाइटी के अंदर चेंज आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रिमिनल फोरेंसिक में आना चाहिए, फिर जो कॉलेजियम सिस्टम है उस पर काम होना चाहिए फॉर द ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जो वर्नेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, इट शुड बी मोर इन द जुडिशरी, जस्टिस शुड बी गिवन इन अ वेरी स्टूपिडेटेड टाइम रादर देन, उसमें लिखा रहता है कि मोर देन 30% ऑफ केस टेक्स मोर देन 5 years, 10 years, इवन 10 years। ये दिखाता है कि वी नीड मोर इंटरवेंशन सो दैट जस्टिस कैन बी गिवन। लेकिन तब भी ये सिग्निफाई करता है कि डीकॉलोनाइजेशन से कि जो भी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, इट इज स्लोली लीडिंग टू डीकॉलोनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल भारतीय न्याय संहिता रिप्लेसिंग द आईपीसी, नागरिक सुरक्षा एंड साक्ष्य संहिता। सिमिलरली जो सिंबल, इट इज ऑल्सो रिप्लेसिंग द माइंडसेट ऑफ द कॉलोनियल सिस्टम, स्वॉर्ड और बाकी सब। लेकिन इसका क्रिटिसिज्म ये भी था कि वाई स्वॉर्ड हैज बीन रिमूव्ड, बिकॉज विदाउट स्वॉर्ड, विदाउट अथॉरिटी, पीनल प्रोविजन, हाउ अ जस्टिस कैन बी गिवन? सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं। दूसरा इसमें क्वेश्चन उठा था कि जो इंडियन ट्रेडिशन है, फॉर एग्जाम्पल सिविलाइजेशन के अंदर में अलग अलग दो तीन, सिर्फ दो हाथ नहीं होता, इट्स शोकेसेस ओमनी प्रेजेंस। तो उसको भी यूज कर सकते थे जैसे बाकी जगह में लेते हैं, तो वैसा करना चाहिए। तो ये अपना पर्सपेक्टिव। और एक और थर्ड चेंज भी हुआ है, तो साड़ी हैज आल्सो रिप्लेस द वेस्टर्न अटायर। तो तीन चेंजेस हुए हैं इन द लेडी जस्टिस। हाँ। व्हाट डू अटलांटिक ओशन हरिकेन फोरकास्ट फोरटेल फॉर इंडिया? जिसमें हरिकेन seem consistent with this for us, Helen and Milton. हरिकेन इसे पूछा भी था, मेक्सिको रीजन में आते हैं मोस्टली, टाइफून जापान की तरफ में, मॉनसून इंडिया की तरफ में। तो ये जैसे बात किया है कि दे एक्सपेक्टेड अ सबड्यूड हरिकेन सीजन ड्यूरिंग एल निनो एंड अर्नेस्ट वन ड्यूरिंग द ला निना। देयर इज अ लिंक बिटवीन ला निना एंड एल निनो। और फोरकास्टिंग ऑफ द हरिकेन, it is
उसको कुछ प्रॉब्लम्स है इसमें। पहला है कि जो एनर्जी डिसिपेशन है ऑन द सी सरफेस टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर हो गया, या फिर रोल ऑफ जेट स्ट्रीम हो गया, वो कहीं ना कहीं मॉडल डिटरमाइन करना दिक्कत होता है। फिर आपके पास रियल टाइम डेटा शेयरिंग मैकेनिज्म होना चाहिए विद रिगार्ड टू इंडियन ओशन एज वेल एज उस तरफ, जो एक उसमें दिक्कत है। Challenge of predicting seasonal cyclone, how they react to global warming, as well as post landfall effect. Chronic stress, such as rising sea level, increasing incidence of the rainfall, all of these impact the overall rainfall event, flash drought and cyclone, as well as overall weather in the Indian condition. तो प्रेशर बेल्ट मूवमेंट होता है पूरे अर्थ में। उसके बाद फिर ट्रांसपिरेशन हो गया, evapotranspiration हो गया, sea surface rise, how they are impacting the circulation of air. Quality of prediction will need rapid intensification and landfall of the cyclone of the post landfall system. आप कैसे इसको कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल अलग अलग मैकेनिज्म में चाहिए होगा फॉर द फोरकास्टिंग, उसी में बात करें। ठीक है। Pollution balls. Pollution ball is formed from chemicals similar to those in cosmetic and cleaning product. Golf-style ball had washed into the beaches across the Sydney Sea, Bondi Beach. क्या होता है कि फैटी एसिड जो यूज होता है क्लीनिंग एंड कॉस्मेटिक में, इट गेट्स मिक्स्ड विद सम फ्यूल ऑयल, और वो एक तरह से बॉल बन जाता है। पोल्यूशन। हायर एजुकेशन नीड्स कॉन्सेप्ट एंड स्किल्स। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट तो है, लेकिन कैसे इसको अप्लाई करें प्रैक्टिकल रियल लाइफ सिचुएशन में, इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। तो इसमें बात है रोल ऑफ द एजुकेटर as well as the environment that is being given in the classroom, that should be very productive, insightful and two-way system. कार्ल जंग बहुत फेमस थिंकर है, वो उन्होंने कनेक्ट किया था एक तरह से बोल सकते हैं साइकोलॉजी को, अवेयरनेस को, स्पिरिचुअलिटी को, फिजिक्स को, कार्ल जंग। तो उसमें उन्होंने रोल प्ले बताया कि चाइल्ड, मैन, वुमेन, ओल्ड मैन, वुमेन, हर एक जो आर्किटाइप्स होता है, इट इन्फ्लुएंस द बिहेवियर एंड शेपिंग द साइकिक ओवर द इयर्स। तो आर्किटाइप, how the archetype in the classroom can help student to become more self-aware and ethically driven. आर्केटाइप मतलब जो एक रिलेशन होता है हीरो हीरोइन आर्केटाइप, उसको कैसे रोल प्ले यूज कर सकते हैं टू अचीव सेल्फ रियलाइजेशन, केस बेस्ड लर्निंग, कोई मूवी के थ्रू हो गया या फिर डिबेट के थ्रू हो गया, लिटरेचर के अंदर में जो हीरो का रोल हो गया, बाकी सब उसको कैसे सेव कर सकते हैं फॉर द एथिकल लर्निंग। सेज आर्केटाइप फॉर द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, मार्केस एरोलियस हो गया, विवेकानंद हो गया, उनको कैसे उनका जो लाइफ है, उनका लर्निंग है, कैसे रोल प्ले कर सकते हैं। क्रिएटिव है आर्केटाइप, सिंबलाइज क्रिएटिविटी इनोवेशन, एल्बर्ट आइंस्टाइन कॉन्सेप्ट आ गया, एलन मस्क का बाद एग्जांपल ले सकते हैं। कोई टास्क दे सकते हैं जिसमें स्टेम, फॉर एग्जांपल स्टेम कोर्स बाकी जगह में स्टीव जॉब्स हो गया, उनका केस स्टडी हो गया, उससे कम से कम हेल्प मिलेगा बच्चों को कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता था फॉर क्रिएटिंग ऑफ द न्यू थिंग्स इन सोसाइटी। एक्सप्लोरर, सेल्फ डिस्कवरी, उसके आ गया जेस्ट क्लास क्लब विद रैंडो कॉमेडी, कैसे
हर एक सोशल एस्पेक्ट को क्रिटिक कर सकते हैं इन अ वेरी सटायर मैनर। फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन कैसे प्रमोट कर सकते, तभी जो आर्किटाइप है, जो एस्टैब्लिश सिस्टम है, उसको एज ए एग्जाम्पल, उसको एज ए केस स्टडी क्लासरूम के अंदर में टीच कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म द स्टूडेंट टू बिकम मोर सेल्फ अवेयर एंड एथिकल। India faces the question with regard to bipolarity when it is facing a challenge with US as well as thorned relationship with Canada and Chinese aggression in Indo-Pacific and across the board. तो उसमें बोला था टू नेशन एज आर एट ओड, दोनों इंडिया एंड चाइना, लेकिन बिकॉज दे आर बोथ वाइंग फॉर ग्लोबल हेजेमनी, बाइपोलैरिटी नहीं है, क्वालिफाइड पोलैरिटी है, क्वालिफाइड बाइपोलैरिटी है, क्योंकि इंडिया चाइना हैव मल्टीपल कनेक्शन, तो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे पर। यूएस लार्जेस्ट इन्वेस्टर, जो पहले एक ब्लॉक था, सोवियत ब्लॉक और यूएस दोनों डिफरेंट काम करते थे विद रिगार्ड टू इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट ट्रेड एक्सेप्ट, दे वर लेस डिपेंडेंट, दे वर लेस इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर, जो अभी ज्यादा है। इसलिए बाइपोलैरिटी जो है वो इंटर डिपेंडेंस के ऊपर है। चाइना पीसफुल राइज ओवर द last quarter, fueled by American investment, has changed the global order. China has supplanted US, the world leading manufacturing industrial giant. Economic size बढ़ते आ रहा है. Slowly it is countering the American hegemony with the role of multilateral institutions such as World Bank, alternative institutions such as AIIB, NDB, and deep pocket diplomacy. China US दोनों intertwined है. Unlike separation of economy between the US and USSR, चाइना इज इंडिस्पेंसिबल द ग्लोबल सप्लाई चेन, यूएसआर नहीं था उसमें। आज चाइना छोटे छोटा प्रोडक्ट से लेकर के सेमी कंडक्टर क्रिटिकल मिनरल सब चाइना के पास, जो उस समय नहीं था। तो बोल सकते हैं कि इट इज अ, तो टर्म अच्छा दिया हुआ इसमें कुछ कुछ, बायपोलैरिटी में बात हो रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जिस्टेंस है। डिस्क्राइब द साइनो अमेरिकन बायपोलैरिटी प्रेफरिंग इंस्टेड such term as competitive coexistence, cold coexistence, conflict coexistence, coexistence है लेकिन conflict है उसमें। That is why both countries need slowly de-risking from each other, and it is they are creating own ecosystem. For example, चाइना रशिया के साथ, ईरान के साथ, यूएस चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी, चीफ फोर अलायंस हो गया, एशियन नाटो का बात करते हैं। It is not about ideology. American sought primacy of capitalism over communism, liberal democracy over single party system. Sino-American competition it is different. कम्युनिज्म बेस्ड नहीं है। चाइना नहीं चाहता कि वर्ल्ड वाइड में कम्युनिज्म रहे, चाइना चाहता है हेजेमनी रहे उसका। इट वो चाहता है कि ओवरऑल जो वर्ल्ड रहे, दे लुक अप टू चाइना फॉर द बैलेंस, फॉर द रीऑर्डरिंग ऑफ द सिस्टम। इसलिए उसको मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं कि उस वही एक मिडिल किंगडम है, बाकी दुनिया उसके चारों तरफ घूमता है। द सक्सेसर स्टेट इज नेवर फार फ्रॉम द एक्शन। Russia can play a very menacing role, giving abundant natural resources, stockpile of nuclear weapon, एक outranks most middle power, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, बाकी सब। तो बोल सकते हैं कि वर्ल्ड जो है ना, प्रोसेफ जोसेफ जॉफ बोलते हैं 2.5 पावर वर्ल्ड है। अच्छे की वो 2.5 पावर वर्ल्ड, इसमें यूएस चाइना है और दूसरा रशिया, जिसको बोल सकते हैं। इट इज मच इकोनॉमिकली स्मॉलर देन इटली, इवन बजट कम है, लेकिन उनके पास नेचुरल रिसोर्स है बाकी सब ज्यादा। प्लस चाइना हैज नो एलियंस, इट हैज अलाइज, इट हैज ओनली क्लाइंट, ये भी न्यू कीवर्ड। फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया, ईरान। तो इंडो पैसिफिक में चाइना गोल इज टू क्रिएट अ ब्लू वाटर नेवी टू काउंटर यूएस
in that region because its base are there in Korea as well as in Japan. Formidable naval power will project power in high seas, transcontinental economic trade. That is why इंडिया का रोल यहाँ इसमें आता है फॉर द फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक. एशियन का रोल आता है ऐसे संग्रीला डायलॉग में पहली बार बात रखा गया regarding the India's vision and also the free and open Indo Pacific, the vision of Asia. फिर इंडिया का रोल बढ़ता है विद रिगार्ड टू स्पेसिफिक कंट्री इन एशियन, फॉर एग्जांपल चिप डिप्लोमेसी विद ब्रूनेई एज वेल एज सिंगापुर. अपार्ट फ्रॉम दैट 21st जो अभी सेशन हुआ रिगार्डिंग द एशियन, उसमें 10 पॉइंट एक्शन प्रोग्राम की बात किया गया हर एक एस्पेक्ट में. इसलिए इंडो पैसिफिक एरिना जो इट सिम्बलाइजेस realignment of the traditional alliances and geopolitics theater. So India, as an emerging power, cannot be reduced to a pawn in a new bipolar context. It has its own hegemony, it has its own appeal in the regional context. इंडिया के पास नेवी जो है ब्लू वाटर नेवी नहीं है, लेकिन लॉन्गर रन वी आर इमर्जिंग एज अ ग्लोबल पावर. अच्छा कीवर्ड. Essential business priority in the changing world. फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए. जैसे हम लोग अभी हाल फिलहाल देखे सैमसंग और उससे रिलेटेड जो लेबर स्ट्राइक हुआ इन तमिलनाडु, कि सैमसंग का जो स्टैंड रहा है इन साउथ कोरिया इट इज डिफरेंट फ्रॉम देयर स्टैंड इन तमिलनाडु. दे आर लुकिंग फॉर रीलोकेशन, लेकिन साउथ कोरिया में ऐसा होता नहीं है, तो वहां एक प्रॉब्लम है. दूसरा मुद्दा उठता है विद रिगार्ड टू एफडीआई. क्या हम लोग हर जगह एफडीआई लाना चाहिए, कुछ जगह पर देयर शुड बी अ कंट्रोल. ई कॉमर्स और बिग टेक उनका जो मोनोपोली है उस पर क्वेश्चन उठता है. फॉर एग्जांपल रिसेंट पिछले कल ही यूएस के जो कोर्ट थे उन्होंने जजमेंट दिया रिगार्डिंग द गूगल्स मेजर्स इन प्ले स्टोर और उनका जो मोनोपोलिक टेंडेंसी है. तो बिजनेस प्रायोरिटी जो होना चाहिए इट शुड बी टेलरिंग फॉर द स्किलिंग अप स्किलिंग ऑफ वर्कर. इट शुड create a solution for developing countries. It should include the local landscape. फर्दर और भी एस्पेक्ट है इसमें बात हुआ रिगार्डिंग द फूड सिस्टम, कैसे वेस्ट को कम करें, न्यूट्रिशियस फूड कैसे इंप्रूव करें. बिजनेस कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, उसको जोड़ना. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे डब्ल्यूटीओ कैसे जो स्क्यू ट्रेड है उसको कम कर सकते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी सेशन हुआ था एथिकल एआई, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इंडियन मोबाइल कांग्रेस को कहा कि हम लोग इंडिया के अंदर में एथिकल एआई को जो फ्रेमवर्क है उसको हम लोग अचीव कर सकते हैं. उसके लिए देयर हैज टू बी सर्टेन काइंड ऑफ अ कोलैबोरेशन बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर. स्टेम इट शुड बी टेकन अप बाय द कॉर्पोरेट एंड मिशन मोड. उसका एग्जाम्पल अभी है अपस्किलिंग और रीस्किलिंग का. 1 लाख opportunity, 1 lakh training opportunity is being given to the new graduate under the training skill program. लॉन्ग टर्म में 1 करोड़ अचीव करने की बात हो रहा है बाय द टॉप 500 कंपनीज. एथिकल ऑपरेशन हाई स्टैंडर्ड इसमें ड्राइव करने की बात किया जा रहा है. एक पैंडा डिप्लोमेसी है, इससे याद है, इसमें पैंडा को यूज किया जाता है फॉर द ग्रीन वॉशिंग आई थिंक. तो इसमें बात हुआ है कि द अराइवल ऑफ पैंडास वेर हाईली कोरियोग्राफ्ड. Administration cannot discuss panda illness, death, diseases without consulting with Chinese partner, whose views shall be fully respected.
China condition to rent pandas to zoos. तो पांडा डिप्लोमेसी मतलब सिंबॉलिक इन नेचर है, लाइक एक important we can say animal है जो associated है with China. So they send these giant pandas to other countries as a tool of diplomacy and wildlife conservation दिखाने हम्म, के लिए. हम्म. अभी ऊपर हम लोग पढ़े रिगार्डिंग टू इंडिया को $10 ट्रिलियन से ऊपर चाहिए फॉर द इन्वेस्टमेंट इन ग्रीन एनर्जी. उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए. इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर सेल्फ रिलायंस नहीं रहेगा तो सोलर इंपोर्ट विल इंक्रीज टू $30 बिलियन अकॉर्डिंग GTR. दैट इज वी नीड PLI स्कीम, ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म बियॉन्ड सोलर, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सोलर, जियोथर्मल हो गया, बायो बायो एनर्जी हो गया, बाकी सब हो गया. 90% of the solar manufacturing involves modules imported cell, only 15% local value addition. सोलार में सिलिका रिफाइनिंग होता है, कॉस्ट इंटेंसिव प्रोजेक्ट हो गया, एल्यूमिनियम फ्रेम ग्लास सब चीज है. चाइना रिमेन्स इंडिया लार्जेस्ट सप्लायर फॉलोड बाय वियतनाम मलेशिया. कस्टम ड्यूटी लगाने के बावजूद भी ऐसा हो रहा है. And China is also dumping them in other हम्म. countries. उनके पास और क्रिटिकल साथ में मिनरल रिसोर्स. कल हमने बात भी करी थी कि इंडिया में जो सबसे लार्जेस्ट सोलर मॉड्यूल प्रोड्यूसर है वो वारी एनर्जीज की हमने बात करी वारे थी. हैं. समाधान शिविर इन अर्बन लोकल बॉडीज इन पंचायत ऑन स्पॉट रेजोल्यूशन ऑफ ग्रीवांसेस. एग्जांपल प्रॉपर्टी आईडी संविता. जो संविता स्कीम आई थिंक इट इज लैंड रिलेटेड. तो कैसे किया सकता ऑन वन स्पॉट रेजोल्यूशन. म्यूनिसिपल ऑफिस में जाइए और समाधान. डिप्लोमेसी इज अ गेम ऑफ चेस इन विच नेशन आर चेकमेटेड. ट्रू. नेशन बिहेव जस्ट लाइक ए ह्यूमन. जैसे हम लोग हर्न्स मॉर्गन्थ्यू के टर्म्स बोलते हैं रिगार्डिंग द नेशनल इंटरेस्ट, रियलिज्म. और एक और आता है लिबरल इंटरनेशनल प्रिंसिपल, जिसमें साथ में काम करते हैं हर एक पॉन नाइट बाकी सब नेशन एक दूसरे के साथ अलाइज बना करके. लेकिन हर एक पॉन से लेकर के बिशप हो गया सबका अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक है. हर एक कंट्री का अपना कैरेक्टरिस्टिक, पावर अलग है, पावर डायमेंशन में अलग है. तो हो सकता है. इसमें बात हुआ कि रिगार्डिंग द विकास यादव ट्रायल और एक गुप्ता थे. You New Delhi needs to take political class and broader public into confidence. ये बस की एंड था. Plus, there should be a bipartisan parliament effort to develop clear legal mandate for intelligence agencies and lay down norms and procedure for the accountability. जैसे फॉर एग्जाम्पल यूएस में CIA और NSA काम करते हैं लेकिन दे आर स्क्रूटिनाइज बाय द जॉइंट पार्लियामेंट्री एक्शन. सेनेट मीटिंग है, सेनेट क्वेश्चन पूछते हैं. इंडिया में ऐसा नहीं होता. इंडिया में रॉ इज डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द प्राइम मिनिस्टर. तो एक बस इसमें किया सब. रिगार्डिंग सेक्शन 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1955, सुप्रीम कोर्ट 4:1 जजमेंट के हिसाब से उन्होंने अपहोल्ड किया. इसमें बात किया कि इमिग्रेशन जो है कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करता है लोकल ट्रेडिशन कल्चर एंड रिसोर्सेस को. देयर कैन बी इमिग्रेशन लेकिन द इमिग्रेशन शुड बी अ कंट्रोल्ड वन. प्रैक्टिकलिटी होना चाहिए इसमें सो दैट लोकल जो कल्चर है डाइवर्सिटी है उसको दिक्कत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल इसमें सेक्शन 6A में असम अकॉर्ड 1995 में इंक्लूड किया गया था अंडर द राजीव गांधी स्टेट ऑफ असम. और बाकी जो असम गण परिषद हो गया स्टूडेंट यूनियन थे उनके साथ. तो 1966 के पहले जो भी लोग हैं उनको डायरेक्टली मिलेगा, सबको मिल जाए सिटीजनशिप. 66 और 71 24 मार्च 1971 के पहले जो भी लोग हैं they will also be given citizenship with certain limited condition की 10 साल तक वोट नहीं. 71 के बाद जो आए हैं इलीगल would be considered as illegal immigrant not eligible for citizenship.
तो डिपोटेशन किया जाएगा। लेकिन इसमें क्रिटिसिज्म है कि एनआरसी इंडिया में है नहीं। एनआरसी लाएंगे, डॉक्यूमेंट चाहिए। जो असली सिटीजन है उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं हुआ तो प्लस आप कैसे डिटरमाइन करेंगे कि वो कब रहे, क्योंकि 50 साल हो चुका है। जो 50 साल से रह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 26 मार्च को जो लोग आए, 50 साल उनका हो गया, 50 साल से ऊपर हो गया, 21 में हो, 53 ईयर्स हो गया, तो उसको वापस कैसे भेजा जाए, क्या प्रोसेस होगा। जो हम लोग बोलते हैं फॉरेनर ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश किया जाता है अंडर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनका रोल रहता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिपोर्टेशन। तो कैसे करेंगे। तो 19 लाख रेसिडेंट वे डिक्लेयर्ड नॉन सिटीजन अंडर द एनआरसी, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमने डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रेटर्निटी की बात करी थी, एंड ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट कनेक्टेड दिस सेक्शन 6A विद द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 29 ऑल्सो। इसमें और उठता है कि अगर डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, एनआरसी नहीं लागू करेंगे, तो और भी इलीगल माइग्रेशन होगा। तो इलीगल माइग्रेशन को कैसे रोका जाए, और हो रहा है तो इसको कैसे कब किया जाए। तो एक बहुत कैटास्ट्रॉफिक मतलब कंडीशन नॉर्थ ईस्ट के लिए। Assessment of the hydrological system has been concluded regarding the water. A global commission on economic water, it talks about finding of the leading scientist and expert. वो बात की है कि the crisis could reduce 8% of the global GDP by 2050. Demand of the fresh water is outstripping supply by 40% at the end of the decade. वाटर स्ट्रेस होगा, हर जगह में दिक्कत होगा, और कॉमन गुड है। इट इज नॉट एंडलेसली रिन्यूएबल सोर्सेस। 80% of waste water generated by industry worldwide is not recycled. तो गवर्नेंस चाहिए, पॉलिसी फ्रेमवर्क चाहिए, लोकल बॉडी उनका कैपेसिटी बिल्डिंग चाहिए कि इसमें डेटा दे। इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी कैन इंश्योर डिजिटल पब्लिक गुड एक्सेसिबल इंक्लूसिव। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, या फिर जैम ट्रिनिटी हो गया। इंडिया नॉट फॉर प्रॉफिट इनिशिएटिव मॉड्यूलर ओपन सोर्स एंड आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म इज वर्किंग विद 11 कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल हर एक एस्पेक्ट पर जो डिजिटाइजेशन है उस पर बात की जाती है। डीपीआई कैन ऑल्सो ट्रैक इम्प्रूवमेंट, कि इसको कैसे एक्सेसिबल बनाए, इंक्लूसिव बनाए, उसके अंदर में चेंजेस लेके आए। और उसके डेटा कलेक्शन होता है, हाउ डेटा इज यूज वैल्यू ऑफ डेटा कैसे करें। तो डीपीआई कैन ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिसमिनेशन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा एज वेल एज नॉन पर्सनल डेटा। नॉन पर्सनल डेटा को आप अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं, बिहेवियर चेंज अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर में, आप शेयर कर सकते हैं विद प्राइवेट सेक्टर कि कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, यूपीआई कैसे इम्पैक्ट कर रहा है सोशल एस्पेक्ट में सब में। तो रिसर्च इसमें हो सकता है, तभी जाकर के जो डेटा ड्रिवन होगा और ओवरऑल जो सिस्टमेटिक पॉलिसी मेकिंग है, इट विल बी मोर एंड मोर टारगेटेड ओरिएंटेड। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि डेटा जो इंक्लूजन है, डिजाइन डेटा एंड डायलॉग, इट इज सेफ और डेटा प्राइवेसी का क्वेश्चन उठता है। फीडबैक लूप जो कॉन्स्टेंट, सिस्टम चोरी हो गया, फीडबैक लूप हो गया कि आप यूज कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वापस से चेंजेस ला रहा है। It should be well designed without compromising the quality of the assessment of data misuse. How the Modi government response to Pakistan in the third term will be intrusive. Over the years हम लोग पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप बढ़ाने की कोशिश किए, राइट फ्रॉम 1999 1972 सिमला अग्रीमेंट में, जिसमें इंदिरा गांधी जी ने एक बिग हार्ट दिखाया था विद रिगार्ड टू पाकिस्तान। उन्होंने कुछ कोर्सिव मेजर नहीं लिया 1972 में, वो सिर्फ ये रखी कि कश्मीर जो का मुद्दा जो है, इट शुड बी बायलैटरल रादर देन मल्टीलैटरल। और बाकी 91 3000 जो पीओडब्ल्यू थे उनको वापस लौटा दिया गया। उसके बाद फिर 19 अटल बिहारी वाजपेयी के समय में लाहौर बस ड्राइव गए थे, हिस्टोरिकल बस जर्नी, लेकिन उसके बाद कारगिल होता है। फिर वापस से 2008 के पहले व्हेन देयर वाज अ चांसेस ऑफ कि रिलेशनशिप बढ़ सकता है, उस समय 2008 में मुंबई में होता है। उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पावर में आए,
2015 में वो खुद से अचानक से लाहौर चल गए इन अ ड्रामेटिक विजिट. इट शोकेस कि दे हैव द ट्रस्ट ऑन द पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी एज वेल एज द सिस्टम. लेकिन उसके बाद उरी पुलवामा और अभी पुलवामा होता है. तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है इट इज इन अ वेरी अप डाउन मैकेनिज्म. और अभी डाउनवर्ड फेज चल रहा है, इसमें ट्रेड भी कम है, बाकी एस्पेक्ट भी बहुत कम है. विदाउट टेकिंग एक्शन ऑन टेररिज्म एज ए सपोर्ट टू टेररिज्म, इंडिया कैनॉट इनिशिएट ट्रेड टॉक बिकॉज पाकिस्तान